Hi parents, are you guilty of shouting and screaming at your child, and do these outbursts make you feel miserable? See, if these outbursts are happening once a while, it's absolutely okay. कोई बात नहीं, बी ईजी ऑन योर सेल्फ. और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है, बच्चे काफ़ी रिजिलियंट होते हैं. दे आर प्रिटी रिजिलियंट एंड दे विल फॉरगिविंग. तो अगर वंस अ वाइल ऐसा आउटबर्स्ट हो भी जाता है, दे विल फॉरगिव यू. प्रॉब्लम तब होती है व्हेन दीज आउटबर्स्ट हैपन अ बिट टू ऑफन. रोज़ ही आप किसी ना किसी चीज़ पे चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, and in the end you're feeling very miserable about it. Then you have to do something about it, and this is what we're going to talk about in this video. Watch this video right till the end and I'm sure it's going to benefit you. Hi parents, I'm Preeti Vaishnavi, certified parenting coach, early childhood educator, and I run school in the city of Gurgaon. And by virtue of it, I come across a lot of parents and children on a daily basis. So whatever I say in these videos is out of the experience of these parents and children. If you haven't subscribed subscribe me now, press the bell notification. I drop a video every week. So in this video we're going to talk about the fact that you're shouting and screaming at your child and you're feeling not good about it. अब करना क्या है, इसके लिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है. इन फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आपका आउटबर्स्ट हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, और दूसरे पार्ट में मैं बात करूंगी व्हाट शुड यू डू सो दैट दीज आउटबर्स्ट डोंट हैपन एंड यू आर एबल टू रिएक्ट अप्रोप्रिएटली टू योर चाइल्ड्स बिहेवियर. ना सबसे पहले लेट्स से योर चाइल्ड डिड नॉट बिहेव वेल, कोई टैंट्रम उन्होंने थ्रो किया, ही वॉज वेरी स्टबर्न, इज थ्रोइंग थिंग्स हियर एंड देयर. यू हैड एन आउटबर्स्ट, यू शाउटेड, स्क्रीम, प्रॉब्ली यू हिट योर चाइल्ड एज वेल. आपने क्या करना है उसके बाद? First and foremost, when you have exhibited this behavior, stop justifying this to anybody around, and more than anything else, stop justifying it to your own self. पता है क्या होता है, when we behave inappropriately, we have a guilt rising in us, और इस guilt को elevate करने के लिए, lessen करने के लिए, we start justifying it to ourselves कि यार मैं इतना थकी हुई थी, इतना टेंशन है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसने बिहेव ही नहीं ठीक तरह से किया, ही वॉज सो रूड टू मी, दिस इज़ नॉट द वे टू बिहेव, ऑब्वियसली आई हैड टू लूज इट. तो इस तरह के डायलॉग्स हम नहीं बोलेंगे. वी विल स्टॉप जस्टिफाइंग दिस बिहेवियर. वी विल टेल आवर सेल्स दैट वट एवर वे द चाइल्ड बिहेव्स, my child is a child, I am an adult, I am a parent, I am supposed to be in control of my behavior. So first thing first, stop justifying your behavior. Second, when the situation is slightly calm, थोड़ी देर बाद go to your child and apologize for your behavior. It should be very clear to your child that this was not the way to behave. It should be very clear to your child that to scream and shout and hit is not the right kind of behavior. तो ये हमें बिल्कुल करना है. और तीसरी चीज़ जो हमें करनी है, see you've just had a negative experience with your child. Now how do you compensate for it? Research कहती है that for every negative experience to be compensated, there have to be equivalent 4 positive experiences. अब पेरेंट और बच्चे में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मीन्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, वार्मथ, हग, fun time, play time, so those experiences will have to be gathered to compensate somewhat the negative experience that has happened earlier in the day. तो इसको हमें ध्यान में. Now let us come to the fact that you do not want to exhibit this behavior. उसके लिए हमें क्या करना है? Now let us say for example you get triggered when your child throws a tantrum, acts stubborn, does not finish his food, let's say for example, and you can feel that irritation rising in you, you can feel that anger rise in you. At that particular moment, physically withdraw yourself, because we do not have to react. That's the agenda. We do not have to react. So physically withdraw yourself. आप वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते. आप इसलिए खड़े नहीं रह सकते क्योंकि आप में आज की डेट में पावर नहीं है not to react or to act appropriately. You do not have that power in today's date. तो आप अपने आप को physically withdraw करोगे. You will go take a walk on the terrace or go in the other room, calm yourself down and then come back and handle your child. That's something that you have to do, because when you physically withdraw yourself, you give yourself some time to think about the probable reaction. तो ये आपने करना है. दूसरी चीज़, इसमें कई बार पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि यार अगर हम रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो हाउ विल द चाइल्ड नो दैट द चाइल्ड हैज़ डन समथिंग रॉन्ग. इसके लिए वी विल वेट फॉर द सिचुएशन टू काम डाउन.
शाम को जब आप आराम से बैठे हो उस टाइम पे पिक इट अप एंड टेल योर चाइल्ड दैट सी आई डिड नॉट टेल एनीथिंग बैक टू यू बट दिस बिहेवियर इज नॉट गुड, इज नॉट एक्सेप्टेबल, वट एवर यू हैव टू टेल, you tell that time in the evening your child is in a much more of a listening state, because जब वो खुद agitated है, जब वो खुद एक tantrum throw कर रहा है, he is himself emotionally dysregulated, तो आप उसको कुछ भी बताओगे he will not listen, he will not accept also. So once the situation is slightly calm, that is the time you pick up this topic and tell him that this is right or this is wrong. तो ये आपने करना है. इसके बाद आपने आइडेंटिफाई करने हैं ट्रिगर्स, आपके अपने पर्सनल ट्रिगर्स. When are those times of the day or of the month when you tend to be slightly edgy? See, in my case, I tend to be very edgy towards the evening. मॉर्निंग में आप कुछ भी मेरे सामने करो, कुछ भी मुझे बोलो, आई विल नॉट रिएक्ट, बट टुवर्ड्स द इवनिंग आई टेंड टू लूज माई सेल्फ, आई टेंड टू बी वेरी एजी. दिस आई हैव टोल्ड माई फैमिली मैनी अ टाइम्स दैट अगर कुछ भी आपको डिस्कशन करना है या कोई भी हमें एक्टिविटी करनी है, लेट्स डू टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे एंड नॉट टुवर्ड्स द इवनिंग, स्पेशली आफ्टर 8 o'clock. So this is what I am all about. You need to identify your own trigger. You need to identify what are those days of the month, because in women, like in mothers, there are some days of the month when we tend to be edgy. So tell your family members that see, these couple of days I might be edgy and I would want you to handle the child. I would want you to feed the child. I would want you to take care of the child. So ask for support from family during those days or times when you feel you will be on the edge. Now the next thing you have to do to have a long-term change in your behavior. See, I told you, idea is not to react. And when I was telling you that, I told you that many a time we do not have power to control our reaction. Now for a long-term change in our behavior, we need to have this power, because every time withdrawing ourselves from the situation is not an answer. So we need to have the power not to react even if our child is not behaving appropriately. Now how do we get this power? We will get this power to control our reaction, control our thoughts by practicing meditation. See, meditation is all about practicing control on your thought. देखिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई बैट्समैन मैच में छक्का मारे, सिक्सर मारे, देन दैट बैट्समैन हैज़ टू प्रैक्टिस इन द नेट्स. स्ट्रेट अवे ग्राउंड में आके तो कोई भी छक्का नहीं मार सकता, तो उसकी एडवांस में हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो यू विल हैव टू टेक अप मेडिटेशन सम टाइम इन द मॉर्निंग, बिगिनिंग ऑफ द डे, सो दैट यू आर प्रिपेयर टू कंट्रोल योर थॉट्स एंड रिएक्शन over the course of the day. See, this control on thought, control on action does not happen overnight. It will take you couple of months before you see any change in your own behavior. पर हम नेट प्रैक्टिस तो शुरू करें, तभी तो कभी जाके हम छक्का मारेंगे. हमें मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा, सो दैट आवर बिहेवियर इज मच मोर अंडर कंट्रोल अंडर स्ट्रेस सिचुएशन. और लास्टली मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन का इफेक्ट लाने में हो सकता है 2-3 महीने लग जाए. पर एक टेक्निक जो आप आज से यूज़ कर सकते हो वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक. इसमें आपने करना क्या है, यू हैव टू फर्स्ट विजुअलाइज दो सिचुएशंस वेयर यू टेंड टू गेट ट्रिगर्ड एंड टेंड टू बी एजी. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको पता है आप ऑफिस में हो, जब आप घर पहुंचोगे अगर चीज़ें तितरी बितरी होती हैं, देन यू टेंड टू लूज योर माइंड. या आपको पता चलता है आपके बच्चे ने खाना पूरा नहीं खाया, देन यू टेंड टू लूज योर माइंड. तो आप इन सिचुएशंस को पहले ही विजुअलाइज करोगे. जब आप ऑफिस से घर की तरफ जा रहे हो, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस सिचुएशंस कि जब मैं घर पहुंचूंगी ना, हो सकता है मेरे घर में सारी चीज़ें तितरी बितरी पड़ी हो, या हो सकता है मेरे बच्चों ने होमवर्क फिनिश ना किया हो, या हो सकता है उन्होंने खाना ना खाया हो. अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मेरा रिएक्शन कैसा होना चाहिए. कल तक आप चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, पर आज जब आप घर पहुंचोगे मेरा रिएक्शन वैसा नहीं होगा. मेरा रिएक्शन होगा, आई विल बी मच मोर पीसफुल. आई विल स्ट्रेट अवे गो टू माई रूम, आई विल मेक माई सेल्फ अ कप ऑफ टी, आई विल हैव कॉन्वर्सेशन विद माई चिल्ड्रन, एंड देन आफ्टर दैट आई विल गेट अप एंड सी कि अच्छा ये चीज़ें इधर उधर क्यों पड़ी हुई हैं. आई विल बी मच मोर काम, आई विल बी मच मोर पेशेंट, आई विल नॉट शाउट. तो ये सारा रिएक्शन आपका जो है आप एडवांस में विजुअलाइज करोगे. जब आप ऐसा करते हो ना, आप अपने ब्रेन को प्रिपेयर करते हो कि अगर स्ट्रेस सिचुएशन आई तो दिस इज़ हाउ यू शुड बी बिहेविंग. तो आपने अपने ब्रेन को एक ऑप्शन दे दिया कि अगर मैं घर गई और मुझे पता चला मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया है, तो आई एम नॉट शाउटिंग,
आई एम वेरी पीसफुली सिटिंग कामली एंड टॉकिंग टू देम। तो आप अपने रिएक्शन को विजुलाइज करते हो इन एडवांस, अपने ब्रेन को प्रिपेयर करते हो। तो जब आप ऐसा करते हो ना, आप घर पहुंचते हो, अगर वो स्ट्रेस सिचुएशन वहाँ होती भी है, देन योर ब्रेन हैज़ एन ऑप्शन कि हाँ, आई एम नॉट सपोज टू बी शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग, आई एम सपोज टू गो टू द किचन एंड मेक अ कप ऑफ टी फॉर माई सेल्फ। इस टेक्निक को जरूर अपनाइए, मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, अपनी फैमिली से सपोर्ट मांगिए, and I'm sure you're going to do much better in times ahead. If you found this video useful, do press the like button, share it among your friends and family, and do meet me next time. Till then, cheers and have a good time.